So my name is Sugandha Arora. I am a life skills trainer, a spoken English mentor, and a leadership coach, right? And I am here in front of you today to discuss about soft skills. As you can see, it's here on the board. But what are soft skills and what are we going to do into it? I will tell you in a little time. Okay? अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे. 5 मिनट के बाद बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है. उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सबसे पहले होना चाहिए वो ही एक्चुअली सबसे पहले करेंगे. तो सबसे पहले होनी चाहिए इंट्रोडक्शन. So you guys know me, you know my name, you know what I do. I don't know you all. However, I can see your names on the screen, but still I would want you to tell me your names and tell me a little about yourself, which will help us in, knowing each other a little better. So what we'll do is we'll do a round of introduction wherein you will have to introduce yourself to me, but that introduction will be a little different. Okay, I am going to do an activity with you in the very beginning. So the activity is, listen to me very, very carefully. What the activity is, you have to tell me your name and also add an adjective before your name, and that adjective should start with the first alphabet of your name. I will say it again. आपको अपना नाम बताना है, अपने नाम से पहले एक एडजेक्टिव मतलब विशेषण लगाना है जो कि आपको लगता है आपके ऊपर सूट करेगा, और वो विशेषण आपके नाम के पहले अक्षर से शुरू होना चाहिए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ आए. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एन. Okay, I got it. So, hi everyone. I am Sensible Sugandha. So, S for sensible, S for Sugandha. Sensible is an adjective. Sugandha is my name. Am I clear? Am I clear? Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. Am I clear? कोई doubt है? Am I clear about the activity? Okay, okay, okay. Only two people can understand. What about the others? What about Kiran, Skand, Lovely? What about you guys? Am I clear? आपको समझ आया कि क्या करना है? समझ आ गया है? Okay, okay. So now what I'm going to do is, सबके साथ तो नहीं कर पाएंगे. We'll quickly choose. वैसे तो हम ज्यादा है नहीं, 4 5 ही हैं. So we'll start one by one. Sandhya, why are you raising hand? Sandhya, why are you raising hand? You want to start with your introduction? Is that why? Sandhya, say something. Can you hear me, Sandhya? I'm waiting for you to speak up. Can you hear me? I can hear something, but I'm sure that's not Sandhya. Okay, let's move on. Let's move on. We'll wait for Sandhya to maybe respond. Let's start that with Pankaj. Pankaj, where are you? You were on your video. Where are you, Pankaj? Can you introduce yourself in this way to me, please? Pankaj, unmute yourself. Unmute. Pankaj, you're still on mute. Pankaj, आप अपने आप को unmute करिए. Click on the button. I have asked you to unmute yourself. What is the issue? Pankaj, हो रहा है? What's wrong? What's wrong? Hey, now I can, yeah. Yeah. Hello, everyone. This is Perfect Pankaj Sharma. Okay. Also, with this, can you also tell me one or two lines about yourself so that I know you a little more? Anything. Where are you from? Why are you here? What do you do with Safalta? Anything that you want to share. Oh, yeah. Well, I recently joined and I'm working as a software developer last 6 years. Okay. And I live in Delhi. Okay. And I'm from Gwalior. Okay. Okay. Right. Thank you so much. Thank you, Pankaj. Thank you very much. You're welcome. That was confident enough. Okay. Can I have anyone else doing the same thing? Kiran, can we have you? That shy smile on your face. Yes, Kiran. Can we please have you? Kiran, you're on mute. You're on mute.
Kiran, you're still on mute. Yeah. Good evening, ma'am. Hi, Hello, good everyone. evening. मैम मैं इंग्लिश में इतना वो तो नहीं कर पा रही, इसलिए हिंदी में बोल रही हूँ, ट्राई कर कोई बात रही नहीं। हूँ मैम. ठीक है मैम. इंट्रोडक्शन मैम सिंपली देने हैं. हाँ हाँ, या अपना अपने नाम के साथ एक विशेषण अगर आपको के से शुरू होता कोई याद है तो प्लीज बताओ. मैम वही क्वेश्चन किया था आपको कि कैसे क्या होगा करके. अच्छा ओके, आपको जितना आता है उतना करो. ओके मैम. एडजेक्टिव को छोड़ दो, अपना इंट्रोडक्शन लो. लेट इट बी. ओके मैम. हेलो एवरीवन. माय नेम इज किरण तिवारी. I'm living UP from Khaga, and बस मैम इतना ही हो पा रहा है. आई एम वेरी ठीक है. नर्वस. It's okay, Kiran. You absolutely right. Or whatever you said was absolutely right. It was pretty confident. So it's okay. You don't have to be nervous. It's Okay okay. मैम, but I am not comfortable It's okay. It's okay. The point here is अच्छा मैं talking to आपको बताऊंगी. everybody मैम. I get it. I get it. इसी के लिए ये session है. That is what soft skills is about, and that is what we're going to learn in today's session. So you will be comfortable. Don't worry. For now, you can But mute ma'am, yourself. I'm Kiran. trying. I'm trying now. Yeah. That's what is important. That's what is important. Thank you, Kiran. Okay, Thank you let's so have much, one more. ma'am. Let's have one more, and then we'll move on. Okay, Skan, can you do it for me? Unmute yourself. Yeah, can you hear me all? Yes, we can. Yes. Hello everyone, my name is Serene Skand. I'm from Agra, and for a couple of years I am working as a software engineer with TCS in Gurgaon. Okay. So you're from Agra, but you here in Gurgaon? No ma'am, right now I'm in Agra. Work from home is going on. Okay, Skan. Thank you very much. Thank you. Skan, did you add an adjective before your name, or I missed that? Ma'am, I said Serene, Serene. Okay, Serene Skand. Okay, thank you very much. Thank you, Skand. I think I missed it then. Thank you very much, Skand. Okay, Sandhya, you're still raising hands. Can you hear me? If you can, please unmute yourself and introduce yourself to me. Sandhya, can you hear me? Sandhya, can you hear me? हमारे पास संध्या तक का समय नहीं है. Okay, I think we'll have to move on in that case. Okay, so now coming on to why are we meeting today? What is the purpose of this session? So I'll tell you, we are here to understand about soft skills, right? There are a lot of things. So there is one thing that we have already done into it that I wanted, which is a fancy introduction that we've just made, and it was pretty good. I really appreciate the sportsmanship of everyone out here. आपने बहुत अच्छे से participate किया. You said it very well. Trying is important. Speaking out is important. Participation is important. That's it. No matter in whichever language you are talking. चाहे हिंदी में बात करें, चाहे इंग्लिश में बात करें, बात करना is important, right? So आज हम actually बात करने पे ही काफी बात करेंगे. I will tell you what it is about. So अभी के लिए I'll tell you what is soft skills. Soft skills होता क्या है? Life skills होता क्या है? Right? So I am telling you ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ स्किल्स, जिसके ऊपर हम आज के सेशन में और आगे आने वाले काफी सेशंस में बात करने वाले हैं. वन ऑफ विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? कि कितना जरूरी है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी नर्वसनेस को हटा के लोगों से बातें करना, हेजिटेशन को हटा के अपने आप से एक फर्स्ट स्टेप लेना लोगों की तरफ, उनसे बात करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने के लिए. It is very important to know how we should communicate with people. Moving on, presentation skills. अपने आप को लोगों के सामने present कैसे करना है, या फिर if you're in a meeting or maybe
you have to present to a large audience. तो कैसे अपने आप को conduct करें is very important, which we will learn under presentation skills. Did I do it? Okay. Confidence building, right? One thing which is very important is confidence within us. हम अगर कॉन्फिडेंट है तो काफी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा भी शेकन अप है, तो चीजें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है उसके लिए. तो व्हाई नॉट बी कॉन्फिडेंट बिफोर वी एंटर इनटू wherever you want to be now. So why not be confident before that? Public speaking skills. Public speaking, as Kiran said, that सबके सामने बात करने में थोड़ी नर्वसनेस होती है, राइट? कभी एक आधे से बात करनी होती है तो हमें लगता है कि चल कोई बात नहीं, एक ही तो सुन रहा है, लेकिन जहाँ 100 सुन रहे होते हैं वहां डर लगता है कि 100 लोग सुन रहे हैं, मेरे बारे में क्या बोलेंगे. And that is what we have to overcome. That is what is public speaking skills. Social skills. A lot of times I have seen a lot of people being uncomfortable. हमें बहुत uncomfortable feel होता है जब हम अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं एट टाइम्स, या फिर किसी ऐसे लोगों से सोशली मिलते हैं जिनको हम शायद नहीं जानते, तो हम बहुत मतलब फिट इन नहीं फील करते, ऐसा लगता है दैट वी डोंट बिलोंग टू दैट ग्रुप. वो वाला फैक्टर हटाने के लिए वी हैव टू लर्न अ फ्यू सोशल स्किल्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स व्हिच इज ऑट टू हैपन, राइट? चाहे प्रोफेशनल वर्ल्ड हो चाहे नॉन प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी. हाउ कैन वी सॉल्व देम इन एन अमेजिंग वे इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न. इमोशनल इंटेलिजेंस, कि कैसे हम अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इमोशनली विद अस, अगर हम इमोशनली वीक है तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट ना पड़े, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट ना पड़े. दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द रेस्ट फॉर यू बिकॉज हम आज सबके बारे में बात नहीं करेंगे. विल जस्ट पिक अप वन टॉपिक आउट ऑफ ऑल दीज एंड देन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, व्हिच इज हाई सेल्फ एस्टीम, creativity, empathy, leadership, decision making ability, and self motivation, right? We are going to talk about all these things in a lot of workshops that we have today. We will touch only one aspect of soft skills, which is communication skills. आज इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था that आज हम बात करने के ऊपर बात करेंगे, that how important is it and why do you think it is important. So before मैं आपको कुछ बताऊं, I want to ask you कि आपको लगता है कि communication skills important है? अगर लगता है तो क्यों लगता है कि important है, और अगर नहीं लगता कि important है तो आपको क्या लगता है कि क्यों important नहीं है? Anybody who want to say anything here? Yeah. Anybody who would like to say anything here? Yes, Kiran, you raising hand. You want to say something? आप कुछ बोलना चाहते हो किरण, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? Yes, Yes, ma'am, Kiran. communication is very important in our Mhm. life because, Okay. ma'am, without conversation, we cannot, ma'am, we cannot present any others person. Okay, ठीक है, very important. And हमारे if our लिए communication is perfect, then, ma'am, our profession, yes, sorry, ma'am, our presentation is very good, ma'am. ओके, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, एंड दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन yes. स्किल्स इज Yeah, इंपॉर्टेंट. yeah. Thank you so much, lovely. Thank you. Yes, Kiran, you wanted to say something? Ma'am, Lanky, lovely. Sorry. Hello. Yes, Kiran. Thank you, lovely. Thank you so much. आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो अभी. Thank you. Yes, Kiran. हाँ जी. यस मैम. मैम, कम्युनिकेशन मतलब किसी को भी अपनी मतलब बात अगर बतानी हो किसी के भी सामने, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही एक जरिया होता है कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बता सकते हैं. अगर हम जैसे कम्युनिकेशन दो ही के बीच होगा, कोई एक थर्ड पर्सन भी आएगा तब भी कम्युनिकेशन होती है, दो होगा तब भी कम्युनिकेशन होती है. कुछ भी चीज़ करने के लिए मतलब कि मेन जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन ही होती है. मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत बोलती हूँ, बट ये है कि थोड़ा मैं इंग्लिश में प्रॉब्लम है. अदरवाइज मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है, थोड़ा बोलती बहुत ज़्यादा हूँ. Okay.
ओके यही मुझे चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बोलो, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा सेशन इंटरेस्टिंग बनेगा और उतनी चीजें समझ आएंगी। एंड द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू विल लर्न। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे, उतना समझ में आएगा। तो अगर आप बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात की इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम है, देन आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस। कम्युनिकेशन में जब हम सीखते हैं कम्युनिकेशन, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जरूरी नहीं है किसी सामने वाले की लैंग्वेज में बात करनी है। नो, नो, नॉट एट ऑल, राइट? इट्स अ क्लियर नो। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, सो दैट जो आप सोच रहे हो वही एग्जैक्ट चीज बोलो। और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करो, एंड दैट इज हाउ कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। अगर आप सोच रहे हो हिंदी में, बोल रहे हो इंग्लिश में, तो सोचा 100% था तो बोलोगे सिर्फ 30%, और समझ में आना कुछ होगा, आएगा कुछ। सो इट इज okay, completely okay to talk in whichever language you're comfortable in. उसमें हमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, right? Are you understanding what I'm trying to tell you? So it's Yes. okay. It is okay to talk in any language that you are comfortable with. Thank you so much, Kiran. Pankaj, आपने अपने आप को unmute किया हुआ, you want to say something? Yeah, I mean, effective communication is basically less about talking, more about listening. Very So, good, very important point. Yeah, I mean, people, I mean, listening means just not understanding the words. It's just how your information is being communicated to other person. Exactly. So the person should have understanding the emotions of the speaker who's trying to convey. Right. Right, absolutely right. And it is one of the very important point जो कि मैं शायद अभी नहीं but आगे 20 मिनट बाद ये बात बोलती. But thank you very much for bringing it up, Pankaj. Very important point. जब हम सुनते हैं ना communication, तो हमारे दिमाग में सीधा एक बात आती है कि बोलना. That is what we think about कि ये है communication, और वो है communication. इसमें कोई गलत नहीं है. But there is a very important factor in communication which is listening as well. अगर बोल लेंगे और सुनेंगे ढंग से नहीं तो बातचीत नहीं हो पाएगी, राइट? So whenever you are saying anything, I am trying to listen to the next level. मैं जितना सुन पा रही हूँ उतना, जितना सुन सकती हूँ उतना सुनने की कोशिश करती हूँ, so that I understand कि आपके क्या व्यूज है एक टॉपिक को लेके, and that is how effective communication can be. बिना अच्छी listening के communication अच्छी नहीं हो सकती. Thank you very much, Pankaj. A very important point. Anyone else? और कोई कुछ बोलना चाहता है? श्वेता, स्कंद और संध्या, यू आर क्वाइट. आप कुछ बोलना चाहते हो अबाउट कम्युनिकेशन? एनीवन एल्स? ओके, if you don't want to say anything, then I have a lot of points to say here about communication. सबसे पहली चीज है कि जो हम चाहते हैं करना, अब वहां पहुंच भी जाए. फॉर एग्जाम्पल नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई, अब हम we're working. Now imagine that you can't satisfy your clients only because you don't know how to communicate. नौकरी मिलने का फायदा नहीं है. Communication is one prime thing जो लोग आप में जज करते हो और आप लोगों में जज करते हो. अगर आप किसी को पहली बार भी मिलोगे, उसका कैरेक्टर जज नहीं कर सकते, उसकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकते, वो कैसा इंसान है उसको जज नहीं कर सकते, लेकिन वो बात कैसे करता है वो आप जज कर सकते हो, राइट? एंड ऑन दैट बेसिस ओनली यू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन. आई विल शेयर एन एग्जांपल विद यू. इससे पहले एक सेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि पहले आप लोग मुझे बताओ, ऐसे ही मैंने उस सेशन में पूछा. तो वन ऑफ द बॉय इन दैट सेशन सेड दैट मैम, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, ये आना चाहिए. आई थिंक यू ऑल अग्री विथ मी. यू ऑल अग्री? गिव मी अ थम्स अप. या. सो बड़ों से कैसे बात करनी है, ये आना चाहिए, ये हम सबको पता है. बट देयर इज वन वेरी थिन लाइन हियर कि बड़ों से कैसे करनी है वो तो आना चाहिए, अपने से छोटों से बात कैसे करनी है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, राइट? अब छोटा कैसे भी छोटा हो सकता है, लाइक उम्र में छोटा, ओहदे में छोटा, हाइट में छोटा, in any way. And then we try to think कि ये तो एक ये तो एक ये तो एक चाय बेचने वाला है, या ये तो एक फल बेचने वाला है, तो क्या इसको मतलब? नो, that is what is very important. So इसके ऊपर I was sharing an example with you. Do we all watch Bollywood movies? हम सब बॉलीवुड मूवीज देखते हैं? Yes or no? We all. Okay, one thumbs up. Only one? और कोई नहीं देखता बॉलीवुड मूवीज? ओके, ओके, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड था. आई विल टेल यू. ओके, संध्या इज गिविंग मी अ थम्स अप. आई टेल यू एन एग्जांपल फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी. लगे रहो मुन्ना भाई है मूवी.
ठीक है, इसमें अच्छा ये देखिए, ओके, इसमें संजय दत्त होता है जो उस टाइम पे रेडियो जॉकी होता है। तो इस मूवी का एक एग्जांपल बताती हूँ। देयर इज अ गर्ल इन दिस मूवी जो कि अपने रिश्ते के लिए एक लड़का देखने जाती है, राइट, इन अ रेस्टोरेंट। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत याद आएगा जब मैं ये बात बोलूंगी। तो वो संजय दत्त को फोन करती है और पूछती है कि मैं इसको जज कैसे करूं पहली मीटिंग में। वो पहली मीटिंग मुझसे पहली बार मिल रहा है और उसको पता है कि वो मुझसे शादी के लिए मिल रहा है, तो वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा। तो अब वो तो आर्टिफिशियल अच्छा बिहेवियर भी हो सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। संजय दत्त 2 मिनट का पॉज लेता है और उसको बताता है कि आपने क्या करना है, आपने देखना है कि वो अपने से छोटे तबके के लोगों से बात कैसे करता है, और उससे पता चल जाता है कि कोई इंसान कैसा है, राइट। तो वो बोलती है ठीक है। तो संजय दत्त एक्सप्लेन्स हर कि आप देखना कि वो वेटर से कैसे बात करता है। तो वो बोलती है ठीक है। शी हैंड्स अप द फोन, शी वेट्स एट द रेस्टोरेंट फॉर दिस गाय टू वॉक इन, एंड दिस गाय इन नो टाइम कम्स इन। और वो जैसे ही आता है वो ऐसे ना हाथ चौड़े करके चेयर पे बैठ जाता है विद वन हैंड इन द बैक सीट। और वो फिर वेटर को ढूंढता है और वेटर थोड़ा दूर होता है, तो उसको वेटर को बुलाना है तो बोलता है अबे, यू नो, दिस इज हाउ ही कॉल्स द वेटर। कैन यू रिकॉल द सीन? आपको याद आ रहा है ये सीन अगर आपने देखी है ये मूवी तो, राइट? और जैसे ही वो ऐसे करता है ना, वो लड़की उठ के वहां से भाग जाती है और संजय दत्त को फिर फोन करती है और बोलती है थैंक यू मुन्ना भाई होता है उसका नाम उसमें मूवी में, तो थैंक यू मुन्ना भाई, अगर इस चीज के साथ पूरी उम्र रहना पड़ता तो मैं तो मर ही जाती, इज व्हाट शी सेज। कितना बेसिक चीज है, दिस इज सच अ बेसिक थिंग, राइट। बट इस बेसिक सी चीज की वजह से बेचारे का रिश्ता होने से बच गया, होने से रह गया, शादी नहीं हो पाई उस लड़की से जिस लड़की के से शायद हो सकती थी, यू नो। So these are very few examples of communication. मैं this is my habit. I am I love watching movies. तो मैं जब भी मूवीज जाती हूँ ना, मैं ऐसी बहुत चीजें ऑब्जर्व करती हूँ जिनसे हमें सीखने को मिलता है। हर मूवी में बहुत कुछ ऐसा होता है। So this is one of which example related to communication. आई शेयर वन अनदर एग्जाम्पल विद यू। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब, कहाँ, किससे, क्यों, कैसे बात करनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, राइट। तो एट टाइम्स हमें पता है कि उससे हमें ये चीजें पूछनी है, बट उसके लिए भी कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। कभी सुना है नकल के लिए भी अकल की जरूरत है? हैव यू हर्ड दैट कोट? तो ये इसका एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल फॉर दिस। देयर इज अ मूवी माला माल वीकली, पुरानी मूवी है, मैंने देखी हुई है पर मुझे बहुत पूरी याद नहीं है। सो आई रिमेम्बर द सीन जिससे मैंने कुछ सीखा था। तो वो सीन ये था, वो ना जनगणना करते हैं, तो घर घर में जाते हैं पूछने के लिए। तो उसका कलीग उसको बोलता है कि तुमने घरों में जाके पूछना है कि आपकी शादी हो गई कि नहीं और आपके बच्चे हैं कि नहीं, तो उससे हमें पता चल जाएगा किस घर में कितने लोग हैं और फाइनली हम कैलकुलेट करके जनगणना निकालेंगे। तो ओके फाइन। तो वो जाता है पहले घर में, ही वॉक्स इन, ही रिंग्स द डोर बेल और देयर इज अ गर्ल दैट वॉक्स आउट ऑफ द हाउस, ओपन्स द डोर। तो वो पूछता है मैडम, हम, वो बताता है पहले कि मैडम हम जनगणना करने आए हैं, वट एवर, सो आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन। तो वो पहला क्वेश्चन पूछता है, जी मैम आपसे पूछना था कि आपकी शादी हो गई? तो वो बोलती है नहीं मेरी शादी नहीं हुई। तो आगे से पूछता है आपके बच्चे हैं? तो खींच के थप्पड़ पड़ता है उसको उसके मुंह पे कि जब मेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो वापस जाता है और उसको बताते हैं अपने कलीग को कि मैंने तो जो तुमने बोला था मैंने पूछ लिया, तो मुझे तो थप्पड़ पड़ गया बड़ी तेज, अब मैं क्या करूं? तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तो दूसरे घर में जा, लेकिन अकल से बात कर, पहले पूछ कि बच्चे हैं कि नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना। कहता है ठीक है। वो दूसरे घर में जाता है, घंटी मारता है, फिर एक लड़की बाहर निकलती है, दरवाजा खुलती है, तो वो बताता है हम जनगणना करने आए हैं, और कहता है जी मैम आपके बच्चे हैं? तो वो बोलती है। तो कहता है जी आपकी शादी हो गई? वो फिर खींच के थप्पड़ खाता है जोर से मुंह पे, राइट। तो इट वॉज अ वेरी फनी सीन। सीन बहुत फनी था, बट मुझे सीखने के लिए मिला इस सीन से दैट किसी ने आपको बोला है कि ये करना है, बट मतलब नकल करनी है लेकिन अकल लगा के करनी है। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट द कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। एंड कम्युनिकेशन कई बार सिर्फ बोलने के लिए नहीं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है, दैट when we talk to people non verbally, maybe through our expressions, through our gestures. इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बड़ा फनी है, कम्युनिकेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है। I'm from Delhi otherwise. So I was in Dehradun at that time. ये मैं बता रही हूँ कम से कम 3-4 साल पुरानी बात। I was in Dehradun. We were walking past by a hospital. उस हॉस्पिटल का नाम था कैलाश हॉस्पिटल। Now see how communication is important. जैसे कि हमें अगर किसी से बात करनी है तो कैसे हमें कंप्लीट बात करनी चाहिए, जितना सोच रहे हैं उतना सब कुछ बोलना चाहिए। ये मैंने एक वैसे एक फनी सीन था, हम बहुत हंसे। कैलाश हॉस्पिटल उसका नाम था, रात का टाइम था।
तो वो जैसे वो होता है ना, लाइट जलती है उसके ऊपर, जब कुछ लिखा होता है, हॉस्पिटल का नाम होता है, उस पर लाइट जलती है। तो हुआ क्या, वो जो कै लिखा था हिंदी में, कै, उसकी लाइट नहीं जल रही थी, लाश की लाइट जल रही थी। तो जब हम दूर से देखते थे तो लिखा था लाश हॉस्पिटल, ऐसे दिखता था। ओ माय गॉड, एक तो हॉस्पिटल और ऊपर से उसका नाम लाश हॉस्पिटल। देन वी रियलाइज कि इसका नाम कैलाश हॉस्पिटल है और वो कै की लाइट बंद हो गई है। यू नो, दैट इज हाउ कम्युनिकेशन इज, दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज। कि अगर हम कैलाश सोच रहे हैं लेकिन लाश बोल रहे हैं, तो सोचो, मीनिंग चेंज हो गया, द मीनिंग हैज कंप्लीटली चेंज of a particular thing that we're talking about. How important it is, right? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है when we talk to people about, especially when we're meeting them for the very first time. जब हम किसी से भी पहली बार मिलते हैं तभी और ज्यादा जरूरी हो जाता है। So I think I've done enough of talking. अब कुछ आपसे पूछती हूँ। Now, अब जैसे मैंने बोला कि जनरली जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कोई मुझे बता सकता है कि आप किसी से पहली बार जब मिल रहे हो तो क्या चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए, और क्या चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? एनीवन? बहुत चीजें होती हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, और बहुत चीजें होती हैं जिसके बारे में बहुत कैजुअली हम बात कर सकते हैं। कोई बता सकता है क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? टेक योर टाइम, थिंक थिंक। सोचो और बताओ कि क्या हो सकता है जिसके बारे में हम लोगों से पहली बार मिले तो बात करते हैं। एनीवन? हेलो। यस किरण। हाँ मैम, नॉर्मली जैसे हम लोग कभी मिलते हैं किसी से तो पहले तो उससे हाल चाल ही लेते हैं, मतलब हाय हेलो से ही बातचीत चालू करते हैं। और राइट। अगर फ्रेंड रहा तो हम लोग को ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें उसके बारे में अगर पता रहती हैं तो ये रहता है कि हम उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है तो डायरेक्टली हम उसकी पर्सनल लाइफ में मतलब नहीं पूछ सकते हैं, मतलब हम उन चीज़ों को एग्जैक्टली। पूछते हैं जो मतलब कि वो माइंड ना करे और उसे मतलब वो कंफर्टेबल हो उन चीज़ों में। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बोला। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस चीज से सामने वाला कंफर्टेबल फील करे वो बात करनी चाहिए, और जिससे हमें लगे कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है वो बात कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम हालचाल पूछते हैं। अब आपने दो एग्जाम्पल दिए कि हम अगर जानते हैं तो पर्सनल बात करेंगे, नहीं जानते तो कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक। लेट्स से कि हम नहीं जानते तो भी क्या सीधा हालचाल से बात शुरू करते हैं? नो मैम, तब हालचाल से नहीं करेंगे बात शुरू। पहले तो मतलब पहले उससे ये कोशिश करते हैं कि थोड़ी फ्रेंडशिप करें। कैसे जैसे कोई फ्रेंडशिप कैसे होती है? मैम फ्रेंडशिप इन द सेंस जैसे कोई अननोन पर्सन है तो जैसे हाय हेलो करे वो हमसे करेगा, फिर हम लोग उसके नाम से शुरुआत की, योर निक नेम ऐसे, फिर वो हमसे ओके। करेगा। और फिर एग्जैक्टली। जॉब वॉब कर रहे हैं तो फिर आपने पढ़ाई क्या कर रखी है, आपकी वेरी गुड। ग्रेजुएशन किया कहाँ से किया है, कैसे किया है, और वर्किंग है तो कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऐसी बात करने का एक मतलब एक सिलसिला चालू होता है जिससे कि जब आप कंफर्टेबल होते तो ऑटोमेटिकली हम फील करने लग जाते हैं हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो हम खुद ब खुद बोलने लग जाते हैं वो चीजें। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो एक में आपने बोला कि निकनेम भी पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले जिस पे मैं जो लाना चाह रही थी इस कन्वर्सेशन को वो यही थी। जब हमने भी अपना सेशन शुरू किया सबसे पहले किया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैम, इंट्रोडक्शन। तो हाँ। जब आप किसी को नहीं जानते आप अपना नाम बताते हो और उनका नाम पूछते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, वट एवर, एंड देन कुछ वर्क से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी उम्र देख के, उनका एक्सपीरियंस देख के हम उस बारे में बात करते हैं। और आपने बोला कि वो सिलसिला चलता है, एक फ्लो बन जाता है कम्युनिकेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक फ्लो बनने की देर होती है, जैसे ही वो फ्लो बना है देन यू आर फ्री टू टॉक, राइट? तो वेरी यस मैम। इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बात आती है कि कौन सी बात कभी नहीं करनी चाहिए। तो एक तो आपने मुझे बता दिया कि कुछ पर्सनल बस इंफॉर्मेशन कभी किसी से पहली बार मिले तो नहीं पूछनी चाहिए, और कुछ इसके अलावा कुछ? मैम फनी सा पंकज है। क्या? अ, या मैम फनी Um, सा है बट जैसे एज भी लोग बताने में थोड़ा वो होते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बॉयज हो या गर्ल्स, एज नहीं पूछनी चाहिए। गर्ल्स को तो स्पेशली नहीं पूछनी चाहिए। कभी भी किसी लड़की को हैप्पी बर्थडे विश करके अगर कोई पूछता ना और आज कितने साल की हो गई, तो एक ही जवाब मिलेगा, 16 साल की होगी। एक ही जवाब मिलेगा, इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा। नोबडी वुड वांट टू टेल यू कि वह 50 साल की हो गई, 55 साल की हो गई या 60 साल की हो गई। नोबडी वुड वांट टू गेट इनटू दोस फिगर्स।
So very good, very important. Age नहीं पूछनी चाहिए. Thank you, Kiran. Yes, Thank Pankaj, you. you were saying something. Yeah, I mean, we should start listening to people that how often they're asking questions, Okay. and we should talk about their talents, and we should ask about their family and friends. Okay. Also, ठीक है. we can. I mean, we should have to be engaged with this person. Mhm. Be emotional sometime, smiling face, and be confident about your body language. This is the first main Very thing. good. If you are Very not good. confident enough to talking to other people, then I don't think so you can make the conversation. Absolutely, absolutely. Thank you, Pankaj. You can mute yourself. Kiran, you can mute yourself. Thank you so much. बिल्कुल ठीक बोला कि बहुत सारी चीजें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमसे सामने वाला कितनी बात कर रहा है, right? So it's very important that how much the other person is talking so that you can reciprocate in the same way, ताकि आप भी उतना ही रिस्पॉन्स दो जितना आपको आगे से मिल रहा है, which is very important. फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, ये सब हम पूछ सकते हैं जब हम किसी से पहली बार मिले. और बहुत चीजें हैं जो मेरे पास एक लिस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी. लेट मी आस्क यू, और कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है? एनीवन हु वांट्स टू ऐड ऑन एनी पॉइंट जिसके बारे में बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? संध्या, श्वेता, लवली. श्वेता, आप हो सेशन में? श्वेता, आर यू देयर? श्वेता, टेल मी a yes or a no maybe. Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस किरण. मैम एक चीज और आ रही है. हाँ जी, बताओ. मैम ऐसे भी होता है कि जैसे हम फर्स्ट मीट किसी से कर रहे हैं और मतलब वही जो पंकज ने जैसे कहा उसी से रिलेटेड बोल सकते हैं, लेकिन मे बी थोड़ा डिफरेंट हो. तो जैसे हम फर्स्ट मीट करते हैं, कोई जैसे सैड सा हो और हम उससे बहुत खुशी वाली बात करें तो वो भी अच्छा नहीं होता. तो हमें मतलब उसके मतलब हाव भाव को भी देख के भी मतलब उस बात को रखनी चाहिए कि भाई इससे इस पे मतलब कि इसे बुरा ना लगे या अच्छा लग सकता है. और बिल्कुल. एक चीज ये भी है प्रैक्टिकली कि कभी कभी हम बात करते हैं तो होता है ना कि माइंड में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा फील सा होता है माइंड से रिलेटेड. मतलब कन्वर्सेशन मतलब या बात करने का माइंड से एक कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं. जब हम फ्लो में Right. जाते हैं कहीं ना कहीं हम अंडरस्टूड होते हैं एक दूसरे के टॉकिंग से, बिहेवियर से और उसके वर्ड्स से. तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जितनी आती है हम लेवल उस हिसाब से अपना बढ़ाते जाते हैं और घटाते जाते हैं. एग्जैक्टली. तो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में जो मेरे को इन दोनों की बात से समझ आया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उतनी ही जरूरी है. सामने वाले की समझना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी प्रेजेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड पॉइंट. नाउ लेट मी शो यू अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव. Okay, now these are some topics that we can discuss which are safe topic. ये अनसेफ है, इनको बाद में टच करेंगे. पहले सेफ टॉपिक्स. वेदर. तो हम वेदर के बारे में बात कर सकते हैं किसी से भी. अगर आप साथ में खड़े हो, वेदर इज अ वेरी सेफ टॉपिक. गर्मी लग रही है तो सामने वाले को भी लग रही होगी, ठंड लग रही है उसको भी लग रही होगी, बारिश आपके लिए है तो उसके लिए भी है, व्हाटएवर, राइट? और अगर नहीं है, लेट्स से यू टॉकिंग वर्चुअली, आपके वहाँ अलग एटमॉस्फेयर होगा, मेरे यहाँ अलग. मैं बोलूंगी बारिश है, आप बोलोगे नहीं हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है. इसमें कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है. तेरे यहाँ बारिश कैसे है, नोबडी विल से दैट, राइट? So there is no point of confusion in this. So weather के बारे में हम बात कर सकते हैं. Art and entertainment. Art and entertainment as in हर इंसान का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है. जैसे कि अभी हमने बात करी कि उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट कैन बी डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग, पोएट्री, पेंटिंग, स्केचिंग, क्राफ्टिंग, एनीथिंग, राइट? हम उस इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो हॉबीज में भी, राइट? वो हॉबीज भी हो सकती है. ये कलर क्यों चेंज हो गया? ओके, वो हॉबीज भी हो सकती है, राइट? वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट स्पोर्ट्स which can also come in our hobbies also, right? Boys की बहुत एक general discussion होती है on cricket that you can always have, and sports persons that you can always have, right? Sports person में है, let's say I like Dhoni, you like Virat Kohli, anyone might like Virat Kohli, I might like Dhoni. इसमें भी लड़ाई का मुद्दा नहीं है. Nobody will end up fighting on Dhoni and Virat Kohli. People can have difference in opinions, which is okay, right? फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक हम सब किसी ना किसी एक्सटेंट पे फूडी हैं. सबको कुछ ना कुछ पसंद होता है, सबको इस बारे में बात करना पसंद होता है. लेडीज को फूड प्रिपेयर करना पसंद होता है, यू नो, पीपल लाइक कुकिंग फूड. तो हम कुकिंग के बारे में बात कर सकते हैं, रेसिपीज के बारे में बात कर सकते हैं. बॉयज माइट लाइक, यू नो, मैंने यहाँ का ये खाया था वो बहुत टेस्टी था, यू नो, यू ऑल्सो कैन गो एंड ट्राई,
such things, right? And maybe you can also talk about I like Chinese cuisines you can talk about. I like Chinese, I like continental, I like South Indian, Japanese, Chinese, whatever. वर्क, जैसे कि हमने बोला कि हम उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई के बारे में, काम करते हैं तो आप क्या काम करते हैं, किससे रिलेटेड है, whatever, तो काम का फ्लो चलता जाता है, तो काम के बारे में बात होती जाती है. ट्रैवल, हम यहाँ होके आए हैं, ये अच्छी जगह है, या ये हमें यहाँ इतना मजा नहीं आया, हम इस टाइम पे गए थे, उस टाइम पे गए थे, whatever, राइट. मूवीज, फिर से आ गया आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में. फैमिली, इसको मैंने छोड़ा इसलिए था कि लास्ट पे टच करूंगी. फैमिली इज वन ऑफ दैट टॉपिक जो कि हम बात कर सकते हैं, बट अगर हम किसी से बिल्कुल शुरुआत में मिल रहे हैं तो उनकी पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाते, जैसे कि अभी हमें किरण ने बोला था. तो एट टाइम्स क्या होता है, लेट्स से मैंने आपसे पूछ लिया, किसी से भी पूछ लिया कि आपकी मम्मी कैसी है, मुझे नहीं पता कि उनकी मम्मी है भी या नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम उनसे थोड़ी देर बात कर लेते हैं, थोड़े दिन बात कर लेते हैं, तो हमें समझ आ जाता है उनके फैमिली के बारे में, क्योंकि उन लोगों के बारे में ज्यादा बात होती है, पता चल जाता है वो किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं. देन वी कैन टॉक अबाउट द फैमिली, मतलब थोड़े टाइम के बाद. दीज आर ऑल सेफ टॉपिक्स. कमिंग ऑन टू टॉपिक्स विच आर अनसेफ, डेंजरस होते हैं ये टॉपिक, खतरनाक होते हैं ये टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, जिसमें से सबसे पहला है फाइनेंसेस. तो फाइनेंसेस में मैं बात करती हूँ एज की, बिकॉज किरण हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट एज, तो मैं बताऊंगी गर्ल्स से एज, बॉयज से फाइनेंसेस ऑल्सो. वैसे दोनों चीजें दोनों पे अप्लाई होती हैं, बट पीपल से गर्ल्स से एज और बॉयज से सैलरी, बट दोनों चीजें दोनों पे अप्लाई होती है. नेवर आस्क एनीवन्स एज, नेवर आस्क एनीवन्स सैलरी. इट इज नॉट इवन पोलाइट टू आस्क आप कितना कमा लेते हो. हाउ रूड इज दैट, राइट? ओके, मूविंग ऑन. पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मैंने दंगे होते देखे हैं. भाई भाई लड़ पड़ते हैं आपस में. That's how serious politics can be. That's how dangerous politics can be, right? If I like Modi, मैं I'll go to any extent to tell you कि मोदी कितना अच्छा है, और if I like केजरीवाल, I'll go to any extent to tell you केजरीवाल कितना अच्छा है, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी, whoever, whichever political party. इंडियंस के ना सेंटिमेंट्स अटैच्ड होते हैं पॉलिटिक्स को लेके, तो भूल जाओ, इस बारे में बात कभी नहीं करनी चाहिए. किसी से पहली बार मिलो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. मैं तो वैसे भी नहीं करती हूँ. आई नेवर टच पॉलिटिक्स. एग्जैक्टली. रिलीजन, इसमें कई बार हम वर्बली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस बोल पड़ते हैं टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला चर्च जाना है, या फिर मेरा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, आप बोलो नमाज, मुस्लिम हो, एंड दैट एक्सप्रेशन कम्स ऑन योर फेस. या किसी ने बोला कि मैंने तो मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, हिंदू तो पागल होते हैं, whatever. I am not getting into those details, and I am just giving you an example. मैंने कुछ गलत नहीं बोला, okay, related to anybody. This is just an example. गॉसिप, नेगेटिव कमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, नहीं होने चाहिए. ऑफेंसिव जोक्स, कोई भी ऐसी चीज जो किसी को बुरी लग सके, आपके लिए शायद जोक हो, किसी और के लिए शायद ना हो. फिजिकल अपीयरेंस, मोटा, छोटा, काला, टकला, whatever, let's not do that, right? एंड सेल्फ टॉक, बहुत जरूरी, जो हम कई बार इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं, विच इज सेल्फ टॉक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मी माई सेल्फ करते हैं कितनी बारी हम, मेरे को तो ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, अच्छा मैं वहां गया था, अच्छा मैंने ये किया था, आपको पता है कल मैं ये करने वाला हूँ, अच्छा आपको पता है 1 महीने पहले क्या हुआ था मेरे साथ. दोज थिंग्स वी एंड अप टॉकिंग ओनली अबाउट आवरसेल्फ एट टाइम. जैसे कि अभी पंकज ने बताया था कि जब हम किसी से बात करें, हमें देखना चाहिए कि वो कितनी बात कर रहा है, और हमारी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना हो सके उनसे बुलवाएं, ताकि हम उनके बारे में जान सकें. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो सेल्फ टॉक कम करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में भी करनी है, बट हमें लिमिट पता होनी चाहिए, दैट हाउ मच शुड वी टॉक अबाउट अवरसेल्फ, और अपने आप को ब्रैग नहीं करना चाहिए. दैट इज हाउ, राइट? किरण, यू वर सेइंग समथिंग, आप म्यूट पे थे जब आप कुछ बोल रहे थे शायद. ओके. Coming on to the art of communication, right? कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कितने लोगों को ये बोलते हुए कि मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब कुछ और था कहने का. होता है ऐसा, कितनी बार होता है. Why? Because जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वो बोलते नहीं है. दिमाग में लाल चल रहा है, सब लाल 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 चल रहा है, बोल नीला भी रहे हैं, बोल पीला भी रहे हैं. Are you understanding? So सारा जंबल होके कुछ और कन्वे होता है. So we should exactly
speak what's here, and that is why I said कि language matter नहीं करती, जो यहाँ चल रहा है वो convey हो जाए वो matter करता है. At the same time the other person is also talking, वो भी कुछ सोच रहा है और वो भी कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए सुनना बहुत जरूरी है, right? Listening to what the other person is talking is also very important. Okay, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, but before we end the session we will do one small role play. एक रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं. So I'll give you one setting, ठीक है, एक सेटिंग दूंगी जिसमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, that I'll tell you. So let's do it with पंकज. कहाँ गए आप? Where are you? पंकज, Skand, where are you? Lovely, are you there? Sandhya, are you there? Sandhya? Okay. Let's do it with Kiran. Okay, Kiran, आप और Skand. Skand, where are you? Skand, please unmute yourself. Okay, perfect. Kiran, आप भी अपने आप को unmute कर लो. So I'll tell you what you have to do. जितनी अभी तक हमने बातें करी हैं उसको थोड़ा रियल लाइफ में सिचुएशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे आप पार्टी में मिल रहे हो, लेट्स से, एंड यू गाइज आर अलोन, राइट? सो यू हैव टू मेक एन इंटरेक्शन विद ईच अदर. तो आप पहली बार मिल रहे हो, आपने एक दूसरे का नाम पूछना है और फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात शुरू करनी है. लेट्स सी हाउ यू डू इट. कैसे आप कौन शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, कैसे पूछोगे और किस बारे में बात करोगे? लेट्स सी. आर यू रेडी? किरण एंड स्कंद रेडी? स्कंद, यू आर आल्सो रेडी? स्कंद, I can't hear you. Are you ready? I'm ready, but I did not understand what you said. Okay, I'll repeat myself. तो आप एक फंक्शन में मिल रहे हो, आप किरण को एक फंक्शन में, किरण और स्कंद आपस में एक फंक्शन में मिल रहे हैं. फंक्शन इनफॉर्मल है, ठीक है? आप दोनों वहां पे अकेले हो फिलहाल, मतलब फंक्शन में बहुत लोग हैं बट आप लोग अकेले अकेले हो. सो यू हैव टू मीट ईच अदर. आपको एक दूसरे से मिलना है और एक दूसरे से बात करनी है. अब आप एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हो तो आपने एक दूसरे से इनका नाम भी पूछना है और किसी भी टॉपिक के ऊपर बात शुरू करनी है. तो वो देखते हैं आप कैसे करोगे. सिंपल टर्म्स में, जैसे हम जनरली भी ये सिचुएशन तो आती है हमारे साथ, तो आप जनरली कैसे करते हो वैसे ही रिपीट करेंगे यहाँ, राइट? स्कंद, एम आई क्लियर? अभी समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट. किरण, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो. ओके, अनम्यूट किरण. परफेक्ट. 1 2 3 एक्शन. हेलो स्कंद, कैसे हो? आपको मेरा नाम कैसे मालूम? पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ. अरे हाँ, मैम थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, सॉरी. It's फिर से okay. मैम, फिर से Start फिर again. से. Start again. 1 2 3 एक्शन. मारे इधर जाओ, रुक जाओ बाबू, मेरा क्लास चल रहा, मस्ती नहीं कर रही. सॉरी मैम. It's okay. Start. हेलो, Hi, व्हाट्स योर नेम? I'm Skand. आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किरण. यहाँ और आप आप? पहली बार आई हैं? सॉरी? आप इस फंक्शन में पहली बार आई हैं? मैंने हाँ, पहले कभी देखा नहीं आपको एक्चुअली यहाँ पे. मैंने भी कभी पहले नहीं देखा आपको वैसे. हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली. मेरा मैं भी एक फ्रेंड एक्चुअली के साथ मेरा भी आया था. फर्स्ट टाइम ही है. मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ ही आई हूँ. ओके ओके. कहाँ से हैं आप? जी, मैं आई हूँ यूपी से. और आप? जी, मैं यहाँ पर काम करता हूँ. मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ. आप भी यहाँ की काम करती हैं? नहीं, मैं काम नहीं करती, लेकिन आप तो कह रहे थे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अगर मैं आप इस यहाँ फंक्शन में काम फर्स्ट टाइम कर, आया हूँ. अच्छा फर्स्ट फंक्शन में, ओके ओके, थोड़ी जी. मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी. इट्स ऑल. ओके ओके. तो फंक्शन में खाना वाना हुआ? जी नहीं, मैं खा कर आया था खाना. अच्छा, फंक्शन में खाना खा के भी आते हो? जी वेरी हाँ, मुझे नाइस. बाहर खाना ज़्यादा पसंद नहीं है इस वजह से. ओके, बट मुझे बाहर का बहुत पसंद है.
I Good for love you. it. कोई बात नहीं, वैसे अगर एक बार और खा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, खा सकते हैं आप अगर खाना चाहें तो। जी बिल्कुल, आपने खाया, आपको कैसा लगा? नहीं, मैं वेट कर रही थी, मुझे फ्रेंड अभी थोड़ी बिजी थी, मैं सोची कि कोई फ्रेंड मिले कंपनी देने के लिए। चलिए मैं ही चलता हूँ फिर आपके साथ। लेकिन आप तो खा के आए हैं, शायद आप अभी इतनी आपने अच्छे से ना इंसिस्ट खाएं। अब आपने इंसिस्ट किया है तो मैं कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा। चल ले लेंगे। ओके, जी चलिए फिर खाते हैं। Okay, very good, very good. You can both mute yourself. Amazing. Good, good. I loved it. I thoroughly enjoyed the conversation. But इसमें कुछ बातें बताऊंगी. सबसे पहले we have to be a little polite. ठीक है, आप दोनों पोलाइट थे, मैं आपको नहीं कुछ कह रही, आपको नहीं बता रही कि आप लोग पोलाइट नहीं थे, जनरली बता रही हूँ दैट हमारी कॉन्वर्सेशन जो होती है पोलाइट होनी चाहिए। चाहे बोला पोलाइट नहीं था कि अगर दोबारा खा लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट वेरी पोलाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट? तो कोशिश करेंगे कि कुछ जितना हो सके कुछ भी ऐसा हो कि सामने वाले को पसंद ना आए तो उसमें हम नहीं घुसेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, देर आर टू वेज ऑफ आस्किंग एनीवन्स नेम। जैसे किरण ने पूछा, बिल्कुल ठीक पूछा, बिल्कुल ठीक है, कुछ बुराई नहीं है इसमें कि आपका नाम क्या है। एक इससे बेटर वे है, वो बताती हूँ, इसीलिए रोल प्ले कराया कि आप कैसे पूछते हो। राइट, आई टेल यू अ लिटिल बेटर वे, इससे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है। दैट यू हैव टू ऑलवेज टेल योर नेम फर्स्ट, तो आपको ज्यादा पूछना भी नहीं पड़ता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, हाय आई एम सुगंधा एंड यू आर, मेरा नाम सुगंधा है और आपका नाम, दैट वे। ये थोड़ा ज्यादा पोलाइटर वे लगता है कि आप एकदम से जाते हो, बोलते हो हेलो आपका नाम क्या है, दैट साउंड्स लिटिल इंटेरोगेटिंग कि हेलो आपका नाम, आप कहाँ से हैं, तो इंटेरोगेटिंग लगता है। रादर इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्जेशन एंड दैट्स वेरी फ्रेंडली वन विद पीपल, then in that case you should always tell your name first, that hi I am Sugandha and you are, मेरा नाम सुगंधा है, आपका नाम। Is it sounding a little better? थोड़ा सा better sound कर रहा है, right? So let's get into a politer version of it. Okay. Let's do only one role play for now. We are anyway short of time. Okay, so we will end the session here. But communication यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये वाला session यहाँ पे खत्म होता है. There are a lot of other things that we have to talk about in communication. बात भी करेंगे, और ऐसे वाले रोल प्लेस आज सिर्फ एक या दो हो पाए हैं। नेक्स्ट सेशन में we'll try and practice more and more role plays ताकि हमें पता चले exactly how we do it. Right? Okay. So now, before we end the session, I would request you all to unmute yourself and tell me if you like the session, or if there's anything, whatever you feel about the session, whatever you feel about the workshop. I would love to hear that from you all. So we are going to end the session. हम ये सेशन खत्म कर रहे हैं। उससे पहले मैं बस ये पूछना चाहती थी आप लोगों से कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कैसा लगा सेशन, how any response on the session, कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं। पहले आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हेलो। या यस मैम बहुत अच्छा लगा मैम। मैम बात तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी मतलब कि गलतियां रहती हैं, जो मतलब कि बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं मैम कि जैसे बाहर जाते हैं, बाहर उन लोग का निकलना पड़ना हुआ तो एक मतलब कि ना एटमॉस्फेयर मिल जाता है उन लोग को अपनी मतलब जो गलतियां जानने का। लेकिन जैसे जो लोग अपनी फैमिली बैकग्राउंड से रहते हैं कुछ तरह, तो उन लोग को सीखने का वो नहीं गलतियां पता नहीं चल पाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। और यही बात मैम सेशन की तो बहुत बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मीटिंग में ही मतलब हम लोग मैंने बहुत सीखा है बाकी का तो मैम अपना अपना खुद का रहेगा। Thank you very much, Kiran. Thank you. Anyone else would like to add on anything? कोई और कुछ कहना चाहता है? और we can. मैम आपने समझाया भी बहुत अच्छे से है। Especially for beginners, I'm telling you, it's a very good session, and we can express yourself, and we can express ourselves in the public appearance. So this is the main thing, and I think it's good, knowledgeable. I'm glad that you learned something. Thank you very much. I'm glad that you learned something and you enjoyed the session, and it was a little useful for you. That really means a lot to me. Thank you very much. Thank you. Yeah. Sure. Good thing you start from basics. So that is the main thing. Okay. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you for all your compliments. Thank you very much, everyone. I am going to leave the session for now. We can all, and I hope to meet you again very soon. Okay.
Bye bye. Bye. See Thank you you. everyone. See you. Bye, Bye. ma'am. Bye bye. Thank you, ma'am.